Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. Very recently I came across a Facebook post in which there was a mention of number of examinations which are conducted in our country. I'm not usually very fond of being on Facebook, but this was something which I was attracted so much that I paid a lot of attention to that, and later on started thinking about it very seriously. And what did I get in that post was that right from the childhood, we continue appearing in one or the other examination. And then they were talking of class 10th, then 12th, and then graduation, post-graduation, research institutes, and then getting into any job scenario. But then if you think about it more seriously, do our children at a very young age not get into that nowadays? I mean, I've seen there are preschools for which there is admission test or some other sort of test, and parents do prepare their children for that. Once your child has got admitted into some school, then there are examinations during the course of the year and annual examinations. And if you count that number, it comes out to be in thousands, for which our children appear almost on weekly basis or monthly basis. And then after that, those high-stake examinations, the board examinations for the children, that is class 10th and class 12th, again become as to be something, if the children don't perform well in these examinations, their life is not set. I mean, that is what usually say. Your life will get set if you do very well in class 10th and 12th. But then what happens after that? Then you have to appear in so many entrance examinations. And people say that if you get through these entrance examinations, your life is set. Then what happens? Those people work hard and appear in lot many number of examinations during the course which they would be pursuing. And after completing that, to getting into a job scenario, I mean, they say that now your life is set. They have to again appear in some examination or the other to get into that job. And then once you have got into that job, and if that job is your interest, your choice, I mean, for which your skill set is absolutely perfect, you're fine. But if you are not, then there are issues. Now, you have been trying to make the life set for the last so many 30 years, 25 years, 20 years, and then ultimately you decide, no, I'm not fit for this. What has our education system done? The role of education system in any country should be to make people competent. Not only qualify for some particular examination or entrance examination or some job. The system and the focus should be to making people competent. And see, these examinations, and when, in that post there was a mention of teachers' eligibility test as well. And the question was that why should there be TET CTET once somebody has done diploma in elementary education or a B.Ed? What is the need of that eligibility test? So this question was very justified. It means that during the course of the time when that person, the child, was studying in school or college or in that training institute, we did not develop those competencies or those skills which are required for that person to be successful in life. So here, if we try to understand the difference between the eligibility and the competence. Now, eligibility is that you have achieved some particular level of achievement, and then you are qualified to apply for this particular post. You may not be necessarily competent for the post, but then you can apply for that post. So I think when I look at the number of applications which are there for one particular post of some organization, it shows that there are large number of qualified people we have produced. And that is the reason that for one post there are 1,000 candidates or applicants. So as far as the qualified people are concerned, perhaps we have plenty. But how many do we have competent? It's a question mark. And that is the reason that despite the fact we have done class 10th with very good marks, with very good percentage, 12th, graduation or some other degree, but then we are still not considered to be competent to have been given that job without further filtering.
Now that filtering is only for rejecting those competent people or rejecting those qualified people. So that again is very, very important question which we all must ask to ourselves and try to answer it. और ये बात आप सब लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं बट हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. So when we talk of competency, sometimes competency and skills are considered to be the same, which is not the case. Skill is one part of being competent, और competency का एक हिस्सा है skill. One हिस्सा is very important, which we do so well in schools. We try to give a lot of knowledge to our children. So knowledge is there. I mean, that's a theoretical knowledge. I can teach a child in the classroom how does a transformer work or electric motor work, but whenever a child looks at an electric motor in practical life, would not be able to say that this is electric motor or transformer. So knowledge is there, but when it comes to the practical application of that knowledge, that skill of applying that knowledge is not there. And also another very, very important thing which comes in competence is that attitude, that ability to applying that knowledge and skill in a very, very effective manner. वो बहुत important हो जाता है. अब अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कुछ एग्जाम्पल लूँ, like you are told about the rules on road. When you learn driving, take that simple example, you are told that you have got to sit this way, you have got to see to the left, to the right, to have a distance between the two vehicles this much and this much. So we are told not many things. So that is knowledge. I may be perfect in that. But the first day when I sit in the vehicle to drive that on road, it becomes very, very difficult for me. I have to do practice for that. I have to apply that knowledge which was given to me before, and then only I will develop that skill of being capable of applying that knowledge. And in that जो मैं attitude की आपसे बात कर रहा था, ability to apply that in very, very complex situations, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा. आप देखिए कभी ट्रैफिक जैम लग जाता है, आप फंस गए आधा घंटा. You are aware of the traffic rules. You are aware of how to drive a car on road. But in that traffic jam, if you get frustrated and you get into that road rage sort of situation, and then again you are not a very competent person to drive a vehicle on roads. तो हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिनको हम बिहेवियरल स्किल्स भी कह सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो हमें स्कूल्स में भी सिखाई जानी चाहिए, कॉलेजेस में भी सिखाई जानी चाहिए, हमारे घर पे भी सिखाई जानी चाहिए. उसके बाद में एक स्पेसिफिक आती है टेक्निकल ऑब्लिक फंक्शनल स्किल्स हमारी है. वो डेफिनेटली उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है. अलग से कोई इंस्टीट्यूशंस खड़े करने होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं. बट जो सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिहेवियरल स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो हमें सिखानी ही पड़ेंगी हर जगह. वो हमारे बच्चों को आनी ही चाहिए. और उनके साथ साथ इन टेक्निकल ऑब्लिक फंक्शनल स्किल्स का भी इनपुट हमें उन बच्चों को अपने स्कूल लेवल पर और उन क्लासेस में जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर लगती हैं हमें देना पड़ेगा, सो दैट व्हेनेवर दे अप्लाई फॉर ए जॉब they are not only qualified but are competent also to do that particular job for which they are applying. जो मैंने पहले कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस जॉब में चला तो जाता हूँ और मैंने देखा कुछ दिनों बाद सब लोग no, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. आई हैव कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ पीपल हु हैड डन द इंजीनियरिंग एंड देन एमबीए एंड दे स्टार्टेड वर्किंग समवेयर and later on they realize no, boring काम है, मैं तो इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं था. Now that person comes to know about that इंजीनियर के लिए नहीं बना था. 4 साल 5 साल मतलब सरकार के खर्चे पे पढ़ाई कर ली आईआईटी में और कोचिंग में इतनी मेहनत की, अपना सारा समय लगाया, बचपन लगाया, और उनको समझ में आता है बाद में कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था. इस बात को पहले ही ना समझ लें स्कूल लेवल पर ही. और यहाँ पर आती है वोकेशनल कोर्सेज की बात, टेक्निकल कोर्सेज की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात. तो हम स्किल डेवलपमेंट की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो नहीं कर पाते. अब देखिए इतने सारे एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो लगता है कि हर दिन कोई एक एग्जामिनेशन होता है हमारे हिंदुस्तान में. मतलब कोई ना कोई एग्जाम दे रहा होता है, और कोई एक नहीं दे रहा होता, हजारों लाखों कैंडिडेट्स किसी एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं या बच्चे किसी एग्जामिनेशन बैठे, और ये 365 डेज चलता है. तो पढ़ा था कि कहीं भारत एक एग्जामिनेशन रिपब्लिक तो नहीं बन गया है कि सो मेनी एग्जामिनेशंस बीइंग कंडक्टेड. तो अब इसमें अगर हम ये देखें कि हमें इतने एग्जाम्स की जरूरत कहाँ पड़ती है,
देखिए, जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है 12th के बाद में, 12th तक तो क्वालिफाई एग्जाम बच्चों को करा दिया, तो चूंकि हमारा जो पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन इज टू लार्ज एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस इज टू लार्ज। आपने देखा 25-25 लाख, 20-20 लाख बच्चे जेई या नीट के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और बाकी में भी इसी तरह की स्थिति है। आप देखें 2-2, 2.5 लाख बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं, और लेने कितने, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट कितने को मिलेगा, कितने लोग वो सिविल सर्वेंट बनेंगे, वो होते हैं 900 या 1000 के आसपास के बीच में। तो ये मेरे ख्याल से, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ रिजेक्शन सिस्टम ज़्यादा है, सिलेक्शन सिस्टम कम है, बिकॉज वी रिजेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज हम हैं इतने संख्या में, हम सब लोग, और खासकर सरकारी जो नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें हम लोग बड़े ही लालायित थे सभी लोग। हमारी सरकार हमें मोटिवेट करती है, आगे बढ़ा रही है कि भाई आप अपना काम शुरू करिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात वो करती है। और मैं तो कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही क्यों, हो सकते हैं तब भी, बट 10वीं के बाद बच्चा क्यों नहीं कर सकता, 8वीं के बाद बच्चा क्यों नहीं कर सकता। तो हम जो बहुत सारे जो ये जॉब सीकर्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, व्हाई शुड वी नॉट ट्राई टू एनेबल देम टू बिकम जॉब गिवर्स, जॉब प्रोवाइडर्स, वो हम बनाएं उनको, और शुरू से ही बनाएं। और जब शुरू से बनाएंगे तो नेचुरली ये स्किल्स, जो मैंने आपके स्किल्स की बात की है, कॉम्पिटेंसी की बात की है, वो बच्चों में हमें वहीं से डेवलप करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में उनके नंबर दिलवा करके, बहुत अच्छे नंबर दिलवा करके हमें कोई बहुत अच्छा हम भला बच्चों का कर नहीं रहे। आप देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा आप सब लोगों को कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, 11th-12th के प्रैक्टिकल्स आप ले लीजिए, जो भी प्रैक्टिकल के आपके सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर बोर्ड्स ने उसके मार्क्स रखे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये मार्क्स सिर्फ मार्क्स देने के लिए रखे हुए हैं, या प्रैक्टिकल वाला हिस्सा बच्चों को सच में प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ बातें मुझे आपके साथ शेयर करने में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ही ऐसा माना जाएगा कि मैं क्यों इस तरह की बातें कर रहा हूँ, बट सच्चाई सब लोग जानते हैं। इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में बच्चे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो कितना सीरियसली करते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि उनको एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलना है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे। उनको वो वहाँ पर उसने कितना सीखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। तो यही कारण है कि जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, दे फोर्स चिल्ड्रन टू डू द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। सवाल उनसे वो सॉल्व करा रहे हैं। और कोई तो ये बोलता है 150 से 200 सवाल करिए सॉल्व डेली, कम से कम 14 घंटे डेली पढ़िए, 6 घंटे इंस्टीट्यूट में और 8 घंटे घर में। अब 14 घंटे बच्चा सिर्फ उसमें लगा रहेगा, उसके बाद 10 घंटे बचते हैं। हाउ मच टाइम डज द चाइल्ड हैव टू हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज और टू अप्लाई दैट नॉलेज विच द चाइल्ड वुड हैव लर्नड समवेयर। उसको तो सिर्फ एक ढर्रे के हिसाब से एक सांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है, और उसका नुकसान हमारे बच्चों को होता है जब उनको एक सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस में अपीयर होना पड़ता है। फिर हम सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ गया। तो स्ट्रेस कम करने के मेरे पास ऐसे कोई जादू का पिटारा तो नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई कैन सजेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड दोज हु कैन डिसाइड अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम, is that our focus should shift from examination to learning. Eligibility से competency की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। दो चीज़ तो करने पड़ेंगे हमारा। I think the focus is on more on examination than in teaching learning at school and college level. जो क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर जो लर्निंग होनी चाहिए, वो उस पर फोकस हम लोगों का कम है, एग्जामिनेशन पे ज़्यादा है। क्वालिफाइड पीपल तैयार करने में हमारे शायद फोकस ज़्यादा है, कॉम्पिटेंट पीपल तैयार करने में हम लोग कहीं थोड़ा सा क्या काफ़ी लैक करते हैं। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बावजूद इसके कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, वी ऑलवेज कीप सेइंग दैट इंडिया इज़ अ यंग नेशन एंड दिस यूथ वुड बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यस, यूथ वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और यूथ कर भी रहा है। लेकिन अगर हम यूथ को थोड़ा सा और एनेबल कर दें और एम्पावर कर दें और उनको वो कॉम्पिटेंसीज और वो स्किल्स सीखने का मौका दें जो कि वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, तो
I think this country would rule over the entire world and would be a leader in every field. तो ये हम हमेशा इस बात को कह करके ना फ्री हो जाएं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे 25 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे 5-6 करोड़ बच्चे कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं, इतनों बच्चों को कैसे कराएं? नहीं, हमें कराना तो होगा। हम अपने इस ये कह करके संख्या ज़्यादा है, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा हो कम हो, कॉम्पिटेंसी लेवल हमें अपने बच्चों का बढ़ाना पड़ेगा। और जो ये बात करते हैं कि संख्या का हमेशा नुकसानदायक होती है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं कि उनके पास अगर 100 बच्चे भी हैं एक साथ सामने, दे ऑल 100 चिल्ड्रन आर लर्निंग सो वेल एंड आर एबल टू, आई एम सेइंग लर्निंग, दे आर लर्निंग सो वेल। लेकिन टीचर का भी कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स भी बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही क्वालिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर द टीचर्स, चाहे वो डिप्लोमा टीचर्स के लिए दे रहे हों या कोई डिग्री दे रहे हों, वो भी हमें करने पड़ेंगे। कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और जो एलोकेशन ऑफ फंड्स इन आवर बजट होता है उसको थोड़ा एजुकेशन के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी सरकार कर सकती है। कुछ जगह एग्जाम होंगी, बहुत ज़रूरी है। बिना एग्जामिनेशन के आप यू मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू एग्जैक्टली नो हाउ कॉम्पिटेंट दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इज और हाउ मच स्किलफुल दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज। तो वहाँ तो हमें ज़रूरत होती है, टेक्निकलिटीज़ जहाँ हों वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, बट हर जगह हमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मैं अपने पेरेंट्स को और सब टीचर्स को ये कहूँगा कि जैसा अभी सिस्टम है, हम अपने उन बच्चों को उसके लिए तैयार भी करें। और बच्चों को जो सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया किसी एग्जामिनेशन में, यू शुड वरी अबाउट, आई मीन यू शुड प्रिपेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर फॉर द वर्स्ट ऑफ द पेपर, सो कॉल्ड वर्स्ट ऑफ द पेपर। जब वर्स्ट कहते हैं ना आज के ज़माने में, गुड पेपर उसको कहते हैं, ऐसा मैंने लोगों से सुना है, जो सीधा सीधा हो, जो आसान हो। वर्स्ट उसको कहते हैं जो थोड़ा मुश्किल हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो। कोई वर्स्ट पेपर नहीं होता। It may be that question paper which would be requiring a lot of application of the concepts you would have learned at class level. तो हम अपने बच्चों को तैयार करें इस बात के लिए भी कि आप मेहनत करिए और सीखने की इच्छा और अपने पोटेंशियल को समझना, अपनी कैपेबिलिटी को समझना एज अर्ली एज पॉसिबल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जामिनेशंस थोड़े डेफिनेटली कम होने चाहिए। एग्जामिनेशन रिपब्लिक से के बजाय हमें कॉम्पिटेंट रिपब्लिक की तरफ बढ़ना चाहिए। एलिजिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट but competency is more important. So I would end my talk today with this statement. Thank you very much. God bless us all.